बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बेटर खैर खैरियत से होंगे। ये आप लोगों की इंग्लिश की क्लास है, छठी जुमात की। आप जब ये वीडियो देखें तो बेटा पेज नंबर 10 जो है वो ओपन कर लें। और आज हम आखिरी जो 2 पैराग्राफ है ये यूनिट हम आज ख़त्म करेंगे। फिर मैं इंशाल्लाह कल इस यूनिट की जो है एक्सरसाइज मैं आपको भेजूँगा, वो फिर आप लोग कापियों में लिखेंगे। सबसे पहले बेटे मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ाऊँगा, फिर मैं इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन करूँगा और फिर हम इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो लिखेंगे। ज़रा गौर से देखो बेटा। आई एम गोइंग बैक, ही सेड टू हिमसेल्फ, but he didn't. He just kept wriggling and squirming until suddenly he found he could stand up. He took a pace forward. आगे की तरफ जाना, तेज़ी पकड़ना, तेज़ जाना. He took a pace forward and immediately fell over stone steps leading up ऊपर की तरफ जाना. Oh, he said, although what he really meant was, thank goodness. He began to climb, and he was still climbing. Some minutes later, it must be a tower, he thought, or the grandest house in the Venus. But at that very moment, he saw a crack of light. He stretched out his hands and found himself touching a cage that clicks softly in dark. A panel suddenly slid open and Nicobobinus stepped through into the most amazing room he had ever seen. दोबारा बेटा इसको पढ़ लें. I am going back, he said to himself, but he didn't. He just kept wriggling and squirming until suddenly he found he could stand up. He took a pace forward and immediately fell over stone steps leading up. Oh, he said, although what he really meant was, thank goodness. He began to climb, and he was still climbing. Some minutes later, it must be a tower, he thought, or the grandest house in the Venus. But at that very moment, he saw a crack of light. He stretched out his hand and found himself touching a cage that clicks softly in dark. A panel suddenly slid open, and Nicobobinus stepped through into the most amazing room he had ever seen. अब बेटा मैं इसकी आपको ट्रांसलेशन करूँगा. आप जो है वो ट्रांसलेशन गौर से सुने और फिर मैं इसके डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स है वो मैं लिखूँगा. अच्छा. आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ. आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ. ही सेड टू हिमसेल्फ but didn't. उसने खुद से कहा लेकिन वो नहीं गया. I am going back, मैं वापस जा रहा हूँ. He said to himself, उसने खुद से कहा, but he didn't, लेकिन वो नहीं गया. He just kept wriggling and screaming. वो कसमसाता और कलबलाता रहा. He just kept wriggling, वो कसमसाता and screaming और क्या करता रहा, कलबलाता रहा. Until suddenly, मगर क्या, यहाँ तक के, until यहाँ तक, suddenly के अचानक, he found he could stand up, यहाँ तक के अचानक उसे मालूम हो कि वो खड़ा हो सकता है. He took a pace forward, इसने एक कदम आगे बढ़ाया. And immediately fell over stone steps leading up, और फ़ौरन ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ियों से
ठोकर खाकर गिर पड़ा या ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ियों पर गिर गया। ओह ही सेड, ओह उसने कहा। Although what he really meant was thank godness, उसने कहा। Oh he said although what he really meant was thank godness. He began to climb, वो चढ़ने लगा। And he began to climb, वो चढ़ने लगा। And he was still climbing, और वो चढ़ता ही गया। Some minutes later, कुछ मिनट बाद भी। It must be a tower, ये कोई मीनार होगा। He thought, are the grandest house in the Venus, या फिर वीनस का सबसे आलीशान घर। But at that very moment, मगर एन उसी वक्त he saw a crack of light, उसने रोशनी की एक लकीर देखी। He stretched out his hand and found himself touching a catch, उसने हाथ बढ़ाया, खुद को एक चटकनी छूते हुए पाया। That clicked softly in dark, जो अंधेरे में हल्की सी क्लिक के साथ खुल गई। A panel suddenly slid open, एक तख्ता कसक कर खुल गया। And Nicobobin stepped through into the most amazing room he had ever seen, और निकोबोबिनस अब तक अपनी नज़र में आने वाली सबसे हैरत अंगेज कमरे में दाखिल हुआ। अच्छा, दोबारा बेटा मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ। आप जो है और से बेटा इसकी ट्रांसलेशन को सुने। आई एम गोइंग बैक, मैं वापस जा रहा हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। बट ही डिडेंट, लेकिन वो नहीं गया। ही जस्ट केप्ट रिगलिंग एंड स्क्वर्मिंग, वो कसमसाता और कलबलाता रहा। अनटिल, यहाँ तक। सडनली ही फाउंड ही कुड स्टैंड अप, कि उसे महसूस हुआ कि वो खड़ा हो सकता है, या उसे मालूम हुआ कि वो खड़ा हो सकता है। ही टुक ए पेस फॉरवर्ड, इसने एक कदम आगे बढ़ाया। एंड इमीडिएटली फिल ओवर स्टोन स्टेप्स लीडिंग अप, और फौरन ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ियों पर गिर पड़ा। ओह ही सेड, ओह उसने कहा। although what he really meant was thank godness, अगरचे उसका मतलब था कि शुक्र खुदाया। He began to climb, वो ऊपर चढ़ने लगा। And he was still climbing some minutes later, और कुछ मिनटों बाद वो फिर भी चढ़ रहा था या ऊपर जा रहा था। It must be a tower, ये कोई मीनार होगा। He thought, are the grandest house in Venus, उसने सोचा या फिर वीनस का सबसे आलीशान घर। बट एट दैट वेरी मोमेंट, मगर उसी वक्त ही सा ए क्रैक ऑफ लाइट, उसने रोशनी की एक लकीर देखी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड फाउंड हिमसेल्फ टचिंग ए केज, और एक चटखनी को छूते हुए पाया। दैट क्लिक स्टॉपली इन द डार्क, जो तारीकी में आहिस्ता से क्लिक कर गई या खुल गई। ए पैनल सडनली स्लिड ओपन, एक तख्ता अचानक खुल गया। एंड निकोबोबिनस स्टेप थ्रू इनटू द मोस्ट अमेजिंग रूम ही हैड एवर सीन, और निकोबोबिनस अपनी नज़र में आने वाले सबसे हैरतअंगेज़ कमरे में दाखिल हो गया। बेटा 2 दफ़ा मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन की। आगे अब मैं इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो आपको लिखूँगा। हमारे पास जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसमें पहला नंबर पर आ जाता है हमारे पास। बुक से मैं देख लेता हूँ बेटा कौन से वर्ड्स है। पहले नंबर पर हमारे पास वर्ड है पेस फॉरवर्ड। पेस फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। इमीडिएटली, फौरन या अचानक।
अचानक, लीडिंग अप, ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना। ग्रैंडेस्ट, आलीशान, आलीशान घर। केच, कुंडा जो हम उसे कहते हैं चटखनी, चटखनी। अमेजिंग, हैरत अंगेज। आप लोगों का टास्क है बेटा, आज जो मैंने ट्रांसलेशन की उसमें आप लोगों का टेस्ट इन लास्ट पैराग्राफ, आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें आप लोगों का टेस्ट होगा। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है बेटा वो है पेस फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, इमीडिएटली, अचानक, लीडिंग अप, ऊपर की तरफ जाना, ग्रैंडेस्ट, आलीशान, केच, चटखनी है, अमेजिंग, हैरत अंगेज। ये जो है बेटा ये यूनिट ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करूँगा, फिर मैं इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज आपको चार्ट पर क्वेश्चन लिखूँगा और आपने वो अपने कापियों में लिखने। बेटा ये स्टोरी जो है ना ये ख़त्म हो गई। ये स्टोरी 2 चैप्टर जो है ना वो टेरी जोन्स ने लिखी है, निकोबोबिनस। टेरी जोन्स ऐसा आथर था जो एडवेंचर्स और ह्यूमर के बारे में फ़नी और मज़ाहिया जिस तरह स्टोरी होती थी वो लिखता था। इसका एक पूरा नावल है निकोबोबिनस का, अगर आपने वो पढ़ना है तो वो आप पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ जो 2 चैप्टर लिए थे वो इस इंग्लिश की बुक में है। सही है बेटा, एक नावल से सिर्फ 2 चैप्टर लिए हैं, निकोबोबिनस के 2 चैप्टर लिए हैं एक नावल से जो टेरी जोन्स ने लिखी है। सही है बेटा। अगर आपको बेटा कोई मसला हो इसमें तो आप मुझसे किसी भी वक्त मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।